ओम शांति स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ इन प्रॉपर्टीज। तो आपका जो मेन हेडिंग है इस चैप्टर का वो है आपको हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। लेकिन ये टॉपिक आपका अभी रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ से डिस्कस नहीं करेंगे। ऐसे नीचे क्लास में पढ़े होंगे, इसमें विशेष कुछ नहीं था। जैसे अर्ली पीरियड में आपका देर वेर वेरी फ्यू एलिमेंट, देर वेर नो एनी डिफिकल्टी इन द स्टडी ऑफ एलिमेंट, बट इन 1864 about the more than 63 elements were discovered. Then the compound and the elements discovered year by years. Naturally the scientists felt difficulty in the study of elements, so scientists started to think to classify the element in a certain basis so that we can easily study of the element, and we can study few element, and on the basis of that we can predict the nature or properties of that particular series or group, you can say. Now in starting, the one scientist that is also known as father of ancient chemistry, named as a Lavoisier, that scientist stated that elements should be classified on the basis of the atomic mass, because the atomic mass is the fundamental properties of the element. This is a statement given by the Lavoisier. So that scientist, renowned scientist in that period, so other scientists try to classify the element on the basis of atomic mass. So first of all, the one scientist came to classify the element, that was the Deboriner tried rules, and he could not succeeded to classify all the element, and after that Newland octave rule given. On the basis of Newland, the element were classified, but he also failed to classify all the element and failed to give us any table. And after that other scientists also came, like the Martin Luther, Mayer, and the other scientists. After that came the Mendeleev periodic Mendeleev's, and he gave a statement that is also known as Mendeleev periodic law. So today I will discuss from this Mendeleev periodic law, Mendeleev's periodic law. After that I will discuss modern periodic law, and then that how the elements classified on the basis of classical concept, मतलब कि पुराने कंसेप्ट के हिसाब से कुछ एलिमेंट ग्रुप का, एक जैसे एलिमेंट नेचर का, उसका एक पर्टिकुलर नेम दिया गया था, इसलिए हम लोग पहले क्लासीफाई करेंगे क्लासिकल कंसेप्ट. आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ सबसेल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. आफ्टर दैट आई विल डिस्कस द नोमेनक्लेचर, IUPAC name and symbol of that man-made element, and then atomic radius. There are three type atomic radius: covalent radius, ionic radius, and van der Waals radius. And after that the main topic of this chapter, the periodicity of IP, electron affinity and electronegativity, and other various terminology will come during discussion of these topics. So these are the main topic of these chapters. So now let us start from the Mendeleev periodic law. So according to Mendeleev, here the statement given: all physical and chemical properties, all physical and chemical properties of elements are periodic function of its atomic mass. इन्होंने भी एलिमेंट को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, जैसा कि इससे पहले जितने साइंटिस्ट था एलिमेंट का क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास के आधार पे ही किया गया था.
तो अब इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट गिवन बाय द मेंडलीफ. तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ I here stated all physical and chemical properties of elements are periodic function of its atomic mass. What does mean periodic function of its atomic mass? Periodic function you can try to understand periodic motion. As you know in physics, periodic motion, the particle move about mean position to and fro. पेंडुलम लाइक पेंडुलम एक मीन पोजीशन के कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक जाता है, फिर आता है, फिर आता है. इस तरह से आपका पेंडुलम को आप हम पीरियोडिक मोशन को कह सकते हैं. पीरियोडिक मोशन सेम उसी तरह से पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है कि व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स द एटॉमिक मास आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ एलिमेंट the physical and chemical properties are repeated, means the same characteristic elements repeated after certain interval of element when you arrange on the basis of atomic mass. So you can explain this one. In explanation you can write when we arrange the elements in ascending order of its atomic mass after certain interval of elements same nature elements are repeated. यही है पीरियोडिक फंक्शन. सेम नेचर एलिमेंट रिपीट होना शुरू होता है. लाइक पीरियोडिक मोशन आपको अबाउट मीन पोजीशन टू एंड फ्रो मूव करता रहता है, उसी तरह से आफ्टर सर्टेन इंटरवल एलिमेंट सेम नेचर एलिमेंट रिपीट करना शुरू करेगा. इसलिए वहाँ लिखा गया है ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स द एटॉमिक मास. So for this purpose Mendeleev took 7 horizontal line that is called period and indicated by first, second, third like that up to 7th period, and 8 vertical line lines called group and indicated by Roman number first, second, third to up to 8. Except 8 group, each group is grouped into A and B, that is first A and second B, like that. First A and first B, second A and second B, like that. तो हम लोग मेंडलीव के आधार पे जस्ट हम स्केलेटन हम बना रहे हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का.
इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट था एटॉमिक मास को आधार लिया था, लेकिन कुछ ही एलिमेंट को अरेंज करने के बाद उनके स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करने लगा, इसलिए अदर साइंटिस्ट सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन मेंडलीफ ने आपको ये कंसेप्ट को डेवलप किया कि सर्टेन इंटरवल, वो फिक्स नहीं किया, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ एलिमेंट सेम नेचर एलिमेंट्स रिपीटेड। तो एक लाइन में जो एलिमेंट आया उसका नेचर एक जैसा हुआ, उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। पीरियड में एलिमेंट का नेचर अलग अलग होता है। तो स्केलेटन इसका हम थोड़ा बना देते हैं। इस मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन अभी इसका एक मेन क्वेश्चन बनेगा, ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो एंड मेरिट एंड डिमेरिट करके भी पूछता है कि राइट डाउन द मेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एंड राइट द डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने 7 हॉरिजेंटल लाइन लिया, जैसे ये फर्स्ट सेकेंड पीरियड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन, और 2 नीचे हॉरिजेंटल लाइन लिया था उन्होंने। एक लाइन को लेंथेनाइड उन्होंने नाम रखा था, दूसरा को हम लोग एक्टिनाइड्स बोले थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका एक साइड में फर्स्ट ए और दूसरे साइड में फर्स्ट बी उन्होंने इसको रखा एक लाइन में। इसके बाद इस साइड लेफ्ट साइड में सेकेंड ए और राइट साइड में सेकेंड बी। इसके बाद थर्ड ए एंड थर्ड बी, इसको थर्ड रखा। फिर इसी तरह से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन और 8 ग्रुप को एक्चुअली ओरिजिनल मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में तो आपका यहाँ पर 8 लिया है, और अभी ओरिजिनल में 0 ग्रुप नहीं था, बाद में ऐड किया गया है। तो यहाँ अभी हम बगल में इसका 0 ग्रुप भी रख देते हैं, लेकिन ये आपका ओरिजिनल मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में नहीं था। ठीक है, तो 8 ग्रुप को छोड़कर बाकी कुछ सब ग्रुप ए एंड बी में डाला है। इसमें इधर ए हुआ, ये बी हुआ, इधर ए हुआ, इधर बी। तो उन्होंने हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट किया, सबसे लोएस्ट एटॉमिक मास वाले एलिमेंट था। उस वक्त तो इनर्ट एलिमेंट नोन नहीं था, लेकिन अभी रख देते हैं हीलियम। और उसके बाद आपका लिथियम हुआ, यहाँ सोडियम हुआ, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम हो गया। ठीक है, आपका लिथियम के बाद बेरिलियम हो गया, ये बोरोन हो गया। यहाँ आपका कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आपका कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, आपका हेलोजन, फ्लोरीन हो गया। और यहाँ 8 ग्रुप में आपका यहाँ खाली है। उसके बाद नियन हो गया। सोडियम के बाद पोटासियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। और बोरोन के यहाँ आप लेंगे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद आर्गन हो गया। ठीक है, और 19 यहाँ आपका हो गया, एटॉमिक नंबर आपका पोटेशियम है। उसके बाद यहाँ कैल्शियम हो गया। कैल्शियम के बाद जो है आपको सब ग्रुप में यहाँ आएगा स्केनियम। ठीक है, स्केनियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। फिर आपको 3 एलिमेंट है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। उसके बाद आपका कॉपर, आपको यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आपको इसी में ये ऊपर रख दीजिए थोड़ा सा, इसमें कॉपर।
और सब ग्रुप इधर कॉपर के बाद आपका आ गया जिंक। जिंक के बाद आपको इधर आपका गैलियम रख दीजिए, जर्मेनियम रख दीजिए, आर्सेनिक रख दीजिए, यहाँ सिलीनियम रख दीजिए, ब्रोमीन हो गया, और यहाँ आप रख दीजिए टेक्नीशियम। इसके बाद आपका रुथेनियम, रोडियम और पैलेडियम ये आपका, ठीक है। तो ये आपको कुछ एलिमेंट लिख देता हूँ। मैग्नीज, टेक्नीशियम, आपका ये आपका हो गया रीनियम, टेक्नीशियम ये 4th ग्रुप में आता है, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ इसको कुछ स्केलेटन में लिख रहा हूँ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम सारा एलिमेंट लिखेंगे। यहाँ आर्गन, क्रिप्टन, जेनल लिख दीजिए, रेडन, आपको सुविधा होगा याद कराने में हमको। और ये एक यहाँ पर लिख लीजिए ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम लिख लीजिए, और यहाँ आयोडीन। कुछ ड्रॉबैक ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल में हमको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ। लेंथेनाइड आपको सीरियम टू लुटेटियम होगा 71 और ये 58, और यहाँ आपका थोरियम 92, लोरेंसियम 103 एटॉमिक नंबर वाला है। तो जस्ट ये हम स्केलेटन में लिखा हूँ। बेरिलियम, कैल्शियम, स्टोंटियम, बेरियम लिख लीजिए, रेडियम, आपको एक्सप्लेन करने में सुविधा होगा। और स्केनियम आ गया, यहाँ आपका अटरियम आ जाएगा, और ये लेंथनम हो जाएगा, और एक्टिनियम। तो इसको मैं स्टार्क मार्क कर देता हूँ, आगे मुझे डिस्कस करने में सुविधा होगा। कुछ डिमेरिट इंडिकेट करने के लिए मैं लिखा हूँ इसको। तो आप उसके बाद जो ये आपका मेंडली पहला व्यक्ति था जो जितने भी एलिमेंट नोन था उसको एक टेबल में अरेंज करने में वो सफल हो गया, इसलिए सारा क्रेडिट मेंडलीफ पे ही जाता है। बिकॉज बिफोर Mendeleev, no any scientist succeeded to give the periodic table, but Mendeleev succeeded to give the periodic table. That means the one similar nature element came in vertical line, that is called group, यानी एक नेचर वाला एलिमेंट सारे एक ग्रुप में एक लाइन में आ गया। तो ये उनकी बहुत बड़ा सफलता था, और जो मेन मोटो था एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए वो यहाँ आपका अचीव हो जाता है, इसलिए सारा क्रेडिट आपको मेंडलीफ पे जाता है। लेकिन फिर भी इसमें जितना आपका बेनिफिट हुआ एक आधार बना, लेकिन इसमें ड्रॉबैक भी उतने ही साइंटिस्ट लोग ने निकाला, इसलिए फिर से इसको इस टेबल को मॉडिफाई किया है मोसले द्वारा। तो मोसले पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियड में किया है, इसलिए उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। और इस टेबल से वो लॉन्ग टेबल है, इसलिए लॉन्ग टेबल भी बोलते हैं उसको। तो पहले तो आपको मेरिट एंड डिमेरिट मैं बता देता हूँ, देन आई विल कम टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ओके, या और मोसले लॉ। तो इसका मेरिट क्या है उसको पहले नोट कर लीजिए। सो गिव द हेडिंग द मेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स ऑफ Mendeleev's periodic table. So first point you can write the Mendeleev periodic table brought the systematization in the study of the element। मतलब इस टेबल को आ जाने से एक सिस्टम डेवलप हुआ, और उससे फायदा क्या हुआ कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप एलिमेंट को स्टडी करते हैं, and on the basis of that we can predict the rest member of that particular group element। यानी सारे एलिमेंट को स्टडी करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ग्रुप वाले का नेचर एक जैसा होता है, तो हम दूसरे ग्रुप के बारे में उसी पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर के बारे में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेरिट यही हुआ कि इट ब्राउट द सिस्टम से सिस्टमैटाइजेशन
in the study of element. And the second point you can write it help to discovery of new element. It help to discovery of new element. When the Mendeleev was arranging the element in ascending order of its the atomic mass, some particular place left, वो छोड़ दिया था इसलिए कि यदि हम अगला एलिमेंट को यदि उसमें रख रहा था तो उसका नेचर उस पर्टिकुलर ग्रुप के आधार पे नहीं मिल रहा था। तो उनका मेन मोटो क्या था कि एक नेचर वाले एलिमेंट को एक जैसा है। सो इन दिस वे, बिकॉज इन दैट टाइम ओनली 63 एलिमेंट वेर डिस्कवर्ड एंड सम प्लेस वेर वैकेंट, and he told and he predicted about that in future when new element discovered that will take this position. तो अब तक किसी के माइंड में ये चीज आया नहीं था कि अर्थ में और कोई भी एलिमेंट नोन है। एंड व्हेन द Mendeleev stated in future in new element were discovered that will take this position, so several scientists involved to search such type the element, and several scientists engaged in the discovery of the new element, and finally when new element discovered and that took that position. So in this way you can say the Mendeleev periodic table helped to discovery in new element. And now third point you can write, it helped in correctness of atomic mass. इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब वो एलिमेंट को अरेंज कर रहा था तो आपका पहले एटॉमिक मास जो नोन था बेरिलियम एंड बोरोन का, तो बोरोन का एटॉमिक मास कम था इसलिए उन्होंने सेकेंड ग्रुप में रख रहा था और थर्ड ग्रुप में बेरिलियम रख रहा था। अब सेकेंड ग्रुप में अदर मेंबर मैग्नीशियम था, कैल्शियम था, स्टोनियम था, इसमें अल्युमिनियम, गैलियम था। तो जब ये देखा कि हम जब अरेंज कर रहे हैं इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, and in that time the atomic mass of the boron higher than that lower than that of beryllium. So according to that periodic law, boron come first and beryllium come after the boron, and that will disturb the table. मतलब ये एलिमेंट इस बाकी मेंबर के नेचर से मिलता ही नहीं है, इसका नेचर इस ग्रुप वाले एलिमेंट से मिल रहा था और इसका नेचर इस ग्रुप से मिल रहा था। Then he thought it may be the atomic mass is wrong, and when experimentally he calculated the atomic mass of beryllium boron, then he found the atomic mass of beryllium is lower than that of the boron. तब उन्होंने ये बेरिलियम को पहले रखा, तब बोरोन को रखा और इस तरह से वो कामयाब हो गया। तो ये जब टेबल बन रहा था तो कुछ कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास में करेक्ट हुआ था, क्योंकि वो टेबल को डिस्टर्ब कर रहा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आ जाने से कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास को करेक्ट करने का आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला लोगों को। तो इस तरह से ये तीन मेन आपका मेरिट है। फर्स्ट, इट ब्रॉड द सिस्टमेटाइजेशन इन द स्टडी ऑफ एलिमेंट, इट हेल्प टू डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, इट हेल्प इन करेक्टनेस ऑफ एटॉमिक मास। तो जितना आपका मेरिट है उससे कहीं बहुत ज़्यादा आपका डीमेरिट निकाला गया साइंटिस्ट द्वारा, और वो सही भी है। तो हमारा ड्रॉबैक कहाँ कहाँ है, डीमेरिट क्या क्या साइंटिस्ट द्वारा निकाला, तो इसको आप लिख सकते हैं इन डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो नेक्स्ट द demerits of Mendeleev periodic table. then demerits of Mendeleev periodic table में पहला पॉइंट लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन।
In fact, the hydrogen in Mendeleev periodic table, hydrogen was placed in first group as well as seventh group. ये इसको फर्स्ट ग्रुप में और सेवंथ ग्रुप में रख दिया था उन्होंने, जबकि आप एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज कर रहे हैं तो कोई भी एलिमेंट का एक ही पोजीशन मिल सकता है, दो पोजीशन नहीं मिल सकता है। लेकिन उन्होंने हाइड्रोजन को दोनों जगह रखने से आपका ये पीरियोडिक लॉ को वायलेट करता है, तो ये इसको ड्रॉबैक में रखा है। इनफैक्ट मेंडलीफ ने देखा कि हाइड्रोजन का बहुत सा सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज जो है आपको अल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप के साथ मिलता है। फिर उन्होंने ये भी पाया कि हैलोजन फैमिली जैसा सेवेंथ ग्रुप वाले एलिमेंट के नेचर से भी ये बहुत सिमिलरिटी शो करता है। तो वो डिसाइड नहीं कर पाया कि इसको हम स्टार्ट कहाँ से करें, सेवंथ में रखना शुरू करें कि फर्स्ट में रखना शुरू करें, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के साथ भी शो करता है सिमिलरिटी और उसके साथ भी, क्योंकि उसका मेन मोटो क्या था कि एक नेचर वाला एलिमेंट एक ग्रुप में आ जाए, एक लाइन में आ जाए। तो ये हाइड्रोजन में आपको दो ग्रुप के एलिमेंट से मेल खाता था और डिसाइड नहीं कर पाया, उन्होंने दोनों जगह रख दिया। तो ये तो रूल को वायलेट करता है, इसको ड्रॉबैक में रखा। फिर सेकंड था आपका देयर इज नो पोजीशन फॉर आइसोटोपिक एलिमेंट। मेंडलीफ के वक्त में बहुत सा एलिमेंट का आइसोटोप भी मालूम था, जैसे कार्बन का C12 है, C14 है, हाइड्रोजन था आपका 1 ड्यूटेरियम 1 2 ट्राइटियम 1 3। तो जब आप एलिमेंट ये सब नोन है और सबका एटॉमिक मास अलग अलग है, आपने लॉ बनाया है कि एलिमेंट को हमको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज करना है। तो ये सब भी एटॉमिक मास के आधार पे भी इसका पोजीशन मिलना चाहिए। तो कार्बन का दो आइसोटोपिक 12 एंड C14 है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसी तरह से और भी ऑक्सीजन का भी था आइसोटोप्स नोन उस वक्त, तो इसके बारे में उन्होंने कोई पोजीशन रखा नहीं। तो लॉ है, जब उसमें बोलते हैं कि एलिमेंट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो जो एलिमेंट उस वक्त नोन था तो उसका एटॉमिक मास के आधार पे उसको जगह मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। रीजन यही था कि यदि उसको एटॉमिक मास के आधार पे उसको आइसोटोपिक को रख देता तो वो तो दूसरा ग्रुप में चला जाता और उस ग्रुप से उसका नेचर मिलता नहीं है। तो बहुत क्लेवरली ये उन्होंने ये इसके स्थान नहीं दिया, लेकिन साइंटिस्ट लोग इसको ड्रॉबैक में रखा। थर्ड डीमेरिट आप रख सकते हैं, ये 8 ग्रुप एलिमेंट। इन 8 ग्रुप में आपको देखेंगे 3 एलिमेंट, इसको सब ग्रुप ए बी में नहीं बांटा है, वो 3 एलिमेंट रख दिया, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल फोर्थ पीरियड में। फिफ्थ में आया आपका रुथेनियम, रोडियम एंड पैलेडियम, और थर्ड वाला ये फिफ्थ और सिक्स्थ वाला में आया है आपका ऑस्मियम एंड इरिडियम और ये प्लेटिनम। तो 8 ग्रुप में 3 एलिमेंट को रखा, जिसको ड्रॉबैक में रखा गया। क्यों? क्योंकि सबका एटॉमिक मास अलग अलग है, तो एटॉमिक मास का आधार पे सबका ग्रुप अलग अलग ग्रुप मिलना चाहिए, लेकिन वो सारे 3 एलिमेंट वेर कैप्ट इन 8 ग्रुप टुगेदर। तो ये इसको भी ड्रॉबैक में लिया। और एक डिमेरिट ले सकते हैं इसमें, जैसे सिक्स्थ ए में आपका टेल्यूरियम है और उसके 7th में आपका यहाँ आयोडीन है। इसका एटॉमिक मास 127 है और इसका एटॉमिक मास 127.9 है। आपने एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का लॉ बनाया है और टेल्यूरियम का एटॉमिक मास 127.9 है, इसका 127, तो इसका पोजीशन यहाँ आना चाहिए और इसका पोजीशन यहाँ आना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन यदि वो रख देता तो आयोडीन, तो ये 6th ग्रुप किसी भी एलिमेंट से नेचर एक जैसा नहीं था, ना ही टेल्यूरियम का मिल रहा था, तो वो नेचर के आधार पे उसको एक जगह रख दिया। भले अपना रूल को वायलेट किया, लेकिन आप जब लॉ दिए हैं तो आप उसको तो सेटिस्फाई करना चाहिए, इसलिए इसको भी ड्रॉबैक में लिया। तो कुछ ऐसे एलिमेंट था जहाँ हायर एटॉमिक मास एलिमेंट प्लेस बिफोर द लोअर एटॉमिक मास प्लेट, दैट ऑल्सो शो द ड्रॉबैक ऑफ द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। और एक लिख सकते हैं आपका 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में, एक लेंथेनाइड और एक्टेनाइड।
तो यहाँ आपका था सीरियम टू लुटेटियम लेंथेनाइड में जो आपका 14 एलिमेंट है जिसको लेंथनम के साथ रखा है, दैट बिलोंग्स टू 3rd B एंड 5th पीरियड, ठीक है, सॉरी 6th पीरियड एंड 6th पीरियड और 3rd B हो गया ग्रुप। और एक्टिनियम जो है वो बिलोंग टू 3rd B ग्रुप एंड 7th पीरियड। उसमें आपको थोरियम टू लॉरेंसियम को रखा गया, यहां भी 14 एलिमेंट है। तो 14 एलिमेंट सीरियम टू लुटेटियम वेयर प्लेस अलोंग विद द लेंथेनम, उसको भले अलग है से हॉरिजॉन्टल लाइन दिया गया। तो जब आप सबका 14 एलिमेंट का सबका एटॉमिक मास अलग अलग है तो उसका भी अलग अलग पोजीशन मिलना चाहिए, लेकिन ये सारे एक साथ रख दिया गया और इसका कोई एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया। बाद में ये पाया गया कि आखिर वो क्यों रखा, वो क्यों कंपेल था वो 14 एलिमेंट को अलग रखने के लिए और थोरियम टू लॉरेंसियम। इनफैक्ट ये 14 एलिमेंट का नेचर क्या है कि बहुत सिमिलिटी है, इसको यदि एटॉमिक मास के आधार पे अलग अलग कर दे तो हर एक का अलग अलग ग्रुप मिल जाएगा और पूरी पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब कर देता। तो ये बहुत स्मार्टली उन्होंने टेबल को बनाया और जो मेन मकसद था, मोटो था, वो मेंडलीफ ने उसको बनाए रखा ताकि हमारा एक नेचर वाले एलिमेंट एक जगह मिल जाए। तो इस तरह से हमारा मेरिट और डीमेरिट आपका आता है। तो हम लोग इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जब आपको साइंटिस्ट लोग देखा कि इसका मेरिट के अलावा इसका डीमेरिट बहुत आ रहा है, इसका मतलब देयर आर सम शॉर्ट कमिंग, सम ड्रॉबैक इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो अगेन सम साइंटिस्ट इन्वॉल्व टू सर्च द रीजन बिहाइंड इट। तो उसमें से मोस्टली को सफलता मिला और उन्होंने इसको टेबल को फिर से रीअरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से बहुत सा ड्रॉबैक जो मेंडलीफ का वो दूर हो जाता है। तो हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।